Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. Dear students, how are you? Are you fine? Are you well? Dear students, we are meeting after a long time. In fact, after your U2 exams. So, dear students, we have completed the previous poem, that is Prayer for Strength. Now, dear students, we are inshallah looking forward for the next poem, that is the Brook. Dear students, this poem, it includes your T1 syllabus. You open your books to page number 61. Let me start. Dear students, before we translate the poem, before we start reciting the poem, before I translate the poem, let us first try to understand the meaning of the title of the poem, what the poem is all about. What is the meaning of the title of the poem? Dear students, Brook. Now, what does Brook mean? Now, Brook means Nadi. In Urdu, if I translate it into Urdu, it means Nadi. Dear students, it means a small stream. It means a natural body of running water smaller than a river. Nadi जिसको हम कहते हैं नदी. So this is what the brook is. Now, dear students, let me give you the introduction of the poem. It's on the top. A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. ये जो ब्रूक होती है ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बल्कि सुनने में भी बड़ी दिलचस्प होती है. That means, dear students, when a brook flows, it looks very beautiful, and it not only looks beautiful but it also pleases our ears. ये जो ब्रूक होती है, जब ये बहती है, जब ये चलती है, ये देखने में बड़ी खूबसूरत दिखती है और सुनने में भी, यानी इसकी जो साउंड होती है, इसकी जो बहने की वो आवाज होती है, वो जो बहने की आवाज आती है, वो भी बड़ी दिलचस्प होती है, वो भी कानों को मजा देती है. प्लीजिंग के मानी है इंटरेस्टिंग, प्लीजिंग के मानी है दिलचस्प. गेटिंग? यस. Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. इसका जो पानी होता है, वो मधुर आवाजें निकालता है जब वो वुड्स में से गुजरती है. जब ये नदी, जब ये ब्रूक कहाँ से गुजरती है? जब ये नदी वुड्स जंगलों में से गुजरती है, जब ये वादियों में से, घाटियों में से गुजरती है, तो बड़ी मधुर आवाज निकालती है. It's like, students, melodious के मानी है मधुर, melodious के मानी है producing a pleasant tune. Yes. अच्छा. The brook personified in the poem narrates the story of its musical journey along these places. अब इस poem में क्या किया गया है? ये जो brook है ये personify की गई है. Now, what is personification? Dear students, personification, it is a literary device which means, एक literary device है जिसके माने हैं, dear students, when we give human qualities to a non-living thing, this is called a personification. जब हम when we give human qualities, जब हम human qualities देते हैं किसी non-living things को, तो that's called personification. It's like, dear students, have you ever seen a brook talking? Have you ever seen a mountain talking? क्या आपने कभी ब्रूक को बातें करते हुए देखा? क्या आपने कभी माउंटेन को बातें करते हुए देखा? कभी कभार क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो इन चीजों को बातें करवाता है पॉइंट में, यानी ये चीजें बातें करते हैं कभी कभार. गेटिंग? तो यानी हम इनको वो लिविंग क्वालिटीज देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नाउ द ब्रूक पर्सोनिफाइड इन द पोएम. तो इसमें भी ये जो ब्रूक है इसको पर्सोनिफाई किया गया है. तो ये अपनी स्टोरी बयान करती है, म्यूजिकल जर्नी अलोंग दीज प्लेसेस, यानी व्हेन इट फ्लोज थ्रू दीज forests, when it flows through these woods, when it flows through these deserts, it produces a sound, it produces music, it creates a music that is very pleasing to our ears. Getting? तो ये जो ब्रूक है इस पोएम में इसको पर्सोनिफाई किया गया है. नाउ पर्सोनिफिकेशन, लेट मी रिपीट इट. व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग, व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज to a non-living thing, to an inanimate thing, we say this is called personification. इसी को personification कहते हैं. तो
यानी इस पोएम में जो ब्रूक है ये खुद बातें करती है, अपनी इंट्रोडक्शन देती है। ब्रूक बताती है अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, जब वो चलती है, जब वो बहती है, कैसा महसूस करती है। दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स। अच्छा, तो अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताती है, अपनी स्टोरी बताती है, कैसे जब ये बहती है इन मतलब वुड से बहती है, जब ये वादियों में से गुजरती है तो एक म्यूजिक सा पैदा करती है। तो इसी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताती है जब ये इन जगहों से गुजरती है। यस, इमेजरी ऑफ साइट एंड साउंड आर ब्लेंडेड इन द पोएम बाय एम्प्लॉइंग एक्सक्यूजिट वर्ड्स and expressions. Imagery of sight. Dear students, here is another literary device that's called imagery. यहाँ पे एक और literary device का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम imagery है. Now, what is imagery? Dear students, imagery के मानी है the ability to form mental images of things. जब शायर हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें बनाता है, कुछ तस्वीरें पैदा करता है, कोई चीजों की या किसी चीज की तस्वीर बनाता है, किसी चीज की तस्वीर पैदा करता है, सो दैट्स कॉल्ड इमेजरी। इमेजरी के मानिए द एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस ऑफ थिंग्स। यानी इस पोएम में, इस ब्रूक जो पोएम है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इमेजरी ऑफ साइट एंड साउंड आर ब्लेंडेड इन द पोएम। इस पोएम में यानी बहुत सारी जगहों की मंजर कशी की गई है, बहुत सारी जगहों की तस्वीर कशी की गई है, यानी बहुत सारी जगहों को बयान किया गया है, उनकी तस्वीर कशी की गई है। यानी जब हम पढ़ते हैं उन जगहों के बारे में तो एक तस्वीर सी बन जाती है हमारे दिमाग में। और कुछ साउंड्स, हाँ यहाँ पे हमने कुछ साउंड्स को भी सुनने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ आवाजें भी हमने यहाँ पे सुननी है। अब ये दोनों चीजें, इमेजरी ऑफ साइट एंड साउंड आर ब्लेंडेड, ये दोनों चीजें इसमें इनका मुरक्कब है। ब्लेंडेड के माने है मुरक्कब, ब्लेंडेड के माने है मिलना, यानी कंबाइन करना। ये दोनों चीजें इस पोएम में कंबाइन की गई है, दोनों चीजों के बारे में बात की गई है, इमेजरी ऑफ साइट एंड इमेजरी ऑफ साउंड। यानी कुछ साउंड भी हमने सुनने को मिलेंगे इस पोएम में। अच्छा, ब्लेंडेड के मानी है कंबाइन, इट मींस मिक्स, यानी ये दोनों चीजें मिक्स है इसमें। मीट, मिलना, मुरक्कब, दो चीजों का मुरक्कब, दैट्स कॉल्ड ब्लेंडेड इन द पोएम बाय एम्प्लॉइंग एक्सक्यूजिट वर्ड्स। यानी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को एम्प्लॉय करके, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके, एक्सक्यूजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करके। एक्सक्यूजिट वर्ड्स के मानी है नफीस, एक्सक्यूजिट के माने हैं इट मींस एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इट मींस एलिगेंट। हाँ, बहुत सारी एक्सप्रेशंस, अच्छी एक्सप्रेशंस, अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें हमने देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे है। अच्छा, नोटिस द यूज ऑफ ओनोमैटोपिया। नोटिस द यूज ऑफ ओनोमैटोपिया। अब ये ओनोमैटोपिया क्या होता है? अब ये भी हमने, ओनोमैटोपिया को भी हमने इसमें नोटिस करना है, यानी ये सब चीजें भी हमने सुनने को मिलेगी ना। व्हाट इज ओनोमैटोपिया? डियर स्टूडेंट्स, ओनोमैटोपिया इट मीन्स इसमें सूती, इसके मानिए इसमें सूती। इट मीन्स, व्हाट डज इसमें सूती मीन्स? इट मीन्स यूजिंग वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे मेड। यानी कोई चीज कैसी आवाज निकालता है, दैट्स कॉल्ड इसमें सूती। यूजिंग द वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे मेड। नाउ मैं आपको इस तरह समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स, लाइक वी हैव क्लॉक, 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 वॉच, वॉच जो होती है ना, क्लॉक, गड़ यथ कशिर पाँच वनान। द साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस, द साउंड दैट इट मेड, इट्स कॉल्ड टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, लाइक दिस। या हाँ, वी हैव डोर बेल जो हमारी होती है ना, डोर बेल, द साउंड दैट इट प्रोड्यूस, it's called ding dong, ding dong. So this is called onomatopoeia. इसी को onomatopoeia कहते हैं, इसमें सूती, यानी using words that imitate the sound they made। यानी ऐसी आवाजें भी हमने इसमें सुनने को मिलेगी इस पोएम में। So let me start, dear students. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern. To bicker down a valley, by 30 hills I hurry down, or slip between the ridges, by 20 tops a little town, and half 100 bridges, till last by Philip's farm I flow, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Yes. Let us try to understand this stanza. I come from haunts of coot and hern. Dear students, in the very first stanza, in the very first line, the brook
tries to explain its origin, where does it come from। ये जो पहला स्टैंजा है, पहली लाइन है, इसमें ये जो ब्रूक है ये अपना origin बताती है, ये कहां से इमर्ज होती है, कहां से निकलती है। I come from haunts of coot and hern। ब्रूक कहती है क्या कहती है, यानी Brooke is saying that I come from haunts of coot and herns, यानी मैं उस जगह से आई हूं जहां पे कूट और हर्न रहते हैं। यानी हॉन्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट डियर स्टूडेंट्स। हॉन्ट के माने है ए फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस। हॉन्ट्स के माने ए फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस, कोई जगह जहां हम अक्सर जाते हैं, जहां हम अक्सर विजिट करते हैं, दैट्स कॉल्ड हॉन्ट। आई कम फ्रॉम, ये अपना ओरिजिन बताती है, मैं कहां से आई हूं। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, मैं उस जगह से आई हूं, मैं उस जगह से विजिट करके आई हूं, मैं उस जगह से निकली हूं जहां पे कूट एंड हिरन रहते हैं। हर्न, एक्चुअली द वर्ड इज हिरन, HERON। अब यहां पे शॉर्ट में हरन लिखा गया है, एक्चुअली द वर्ड इज हिरन, HERON। नाउ व्हाट डज कूट एंड हिरन मीन डियर स्टूडेंट्स। कूट एंड हर्न, इट मीन्स बर्ड्स। बोथ द वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ बर्ड्स। नाउ कूट के माने है स्लेट ब्लैक स्लो फ्लाइंग बर्ड समवट रिजेंबलिंग डक्स। एक जानवर होता है जिसका सर सफेद होता है, हम इसको मुर्गाबी भी बोल सकते हैं। मुर्गाबी आप याद रखो। स्लेट ब्लैक, स्लो फ्लाइंग बर्ड, ये ज्यादा नहीं उड़ता है। स्लो फ्लाइंग बर्ड समवट रिजेंबलिंग टू डक्स, इसकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल किसके जैसी होती है, डक के जैसी होती है, बतख के जैसी होती है। मुर्गाबी हम इसको बोलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द कूट इज। नाउ व्हाट हर्न मीन्स। हर्न एक्चुअली शॉर्ट में हम हिरन को, असल में जो वर्ड है दैट इज हिरन, अब शॉर्ट में हम हरन कहते हैं, हिरन, HERON। अब ये हिरन जो है ये भी एक बर्ड है। इट मीन्स ए लार्ज फिश ईटिंग वेडिंग बर्ड विथ लॉन्ग लेग्स एंड नेक। आपने देखा होगा एक बहुत लंबा एक जानवर होता है, ये वेड करता है, पानी में तैरता है और क्या करता है, इसकी जो टांगे होती है वो बड़ी लंबी होती है और इसकी गर्दन भी बड़ी लंबी होती है, इसको हिरन कहते हैं। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हिरन। नाउ शॉर्टली ही सेज इन द फर्स्ट लाइन, मैं निकली हूं, मैं इमर्ज होती हूं, कहां से, उस जगह से जहां पे कूट एंड हर्न रहते हैं, जहां पे ये जानवर रहते हैं, वहीं से मैं निकलती हूं। आई मेक ए सडन सैली, उसके बाद मैं क्या करती हूं, आई मेक ए सडन सैली, यानी मैं अचानक से बहती हूं, मैं अचानक से गुजरती हूं। आई मेक ए सडन सैली, सडन के मानी अचानक, सैली के मानी है टू रश, सैली के मानी है क्विकली, रश यानी जल्दी से, तेजी से बहना। वी नो जब ये नदी बहती है तो बड़ी तेजी से बहती है, अचानक से बहती है। सैली के मानी है टू रश क्विकली, है रश, तेजी से आना, तेजी से चलना, तेजी से बहना, वट एवर यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, तो जब मैं आती हूं, जब मैं बहती हूं, जब मैं निकलती हूं वहां से जहां पे कूट और हर्न रहते हैं, जब मैं अचानक से निकलती हूं, गुजरती हूं, उसके बाद एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, तो जब मैं फर्न्स के बीच में से गुजरती हूं। ना व्हाट इज फर्न डियर स्टूडेंट्स, फर्न इज ए फ्लावरलेस प्लांट, एक पौधा बगैर फूलों के, उसको फर्न कहते हैं, ठीक है। स्पार्कल के माने है शाइन ब्राइटली, स्पार्कल के माने है चमकना, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, जब मैं निकलती हूं, जब मैं बहती हूं, तो ये जो फर्न होते हैं, इन फर्न्स के बीच में से जो फ्लावर लेस प्लांट्स होते हैं, मैं इनके बीच में से चमकती हूं। कशीर पॉइंट गो ये गुजरन छस अपर यपर पोशो रुस्तुई आसन छु तिम प्लांट, तिम कुल, और अम पछ जो आफ्ताब की रोशनी मुझ पे पड़ती है, मेरे ऊपर पड़ती है, तो मैं चमकती हूँ, बुछस चमकन। ये नदी वनन, ये नदी, ये ब्रूक अपनी स्टोरी बताती है, अपनी कहानी सुनाती है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। अच्छा, टू बिकर डाउन अ वैली, टू बिकर डाउन अ वैली, तो उसके बाद मैं क्या करती हूं, टू बिकर डाउन अ वैली, उसके बाद मैं एक वादी में आती हूं, उसके बाद मैं एक गाठी में आती हूं। एम पछ किस गाठी मंज, वैली के माने है गाठी, वैली के माने है
गाठी, वादी, वट एवर यू कॉल, टू बिकर डाउन. ना व्हाट इज बिकर डाउन? बिकर के माने हैं डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स मेक नॉइज, इट मीन्स जेंटल रिपीटेटिव नॉइज पैटर्न. यानी जब ये वादी में से गुजरती है, गाठी में से आती है, तो ये शोर मचा के आती है. टू बिकर डाउन ए वैली. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. जब मैं फर्न्स के बीच में से, फ्लावरलेस प्लांट्स के बीच में से गुजरती हूं, चमकती हूं, उसके बाद में आ जाती हूं कहां? टू बिकर डाउन. यानी शोर मचाते हुए मैं वादी में जाती हूं, गाठी में जाती हूं. टू बिकर डाउन. बिकर के मानी है मेक नॉइज, यानी शोर मचाते हुए. शोर मचाते हुए मैं वादी में जाती हूं, गाठी में जाती हूं. टू बिकर डाउन. आर यू गेटिंग मी? एक बिकर डाउन के मानिए फ्लो और फॉल विथ ए जेंटल रिपीटेटिव नॉइज पैटर्न. इस शोर के साथ, इस आवाज के साथ. बिकर डाउन ए वैली, मेक नॉइज. इस आवाज के साथ मैं गाठी में जाती हूं, वादी में जाती हूं. अच्छा, उसके बाद, अच्छा जब वादी में आती है, उसके बाद बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. उसके बाद वादी में से जब ये गुजरती है, उसके बाद बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. उसके बाद ये 30 हिल्स के ऊपर से ये गुजरती है. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. उसके बाद ये बहती है 30 हिल्स से. अब यहां पे 30 इस्तेमाल किया गया. इट्स द वे ऑफ राइटिंग, एक लिखने का तरीका होता है पोइट्री. 30 हम कह सकते हैं मैनी हिल्स. बाय मैनी हिल्स आई हरी डाउन. बहुत सारे हिल्स में से मैं फिर नीचे आती हूं. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस. और या क्या करती हूं, या बहती हूं किन के बीच में से? रिजेस के बीच में से मैं बहती हूं. एम पछ बालो मंज या सा गुजरन बहन. रिजेस के माने हैं, रिजेस के माने हैं ए रेंज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स. पहाड़, यानी पहाड़ियों के बीच में से मैं गुजरती हूं. ये कौन अपनी स्टोरी बताती है? ब्रूक अपनी स्टोरी बताती है, ये अपने आप को डिस्क्राइब करती है. और स्लिप बिटवीन द रिजेस, यानी माउंटेन्स के बीच में से मैं निकलती हूं. अच्छा, एम पछ पहाड़ों मंज वसन. बाय 20 थॉप्स ए लिटिल टाउन. और जब इन पहाड़ों के बीच में से मैं उतरती हूं नीचे, उसके बाद में आती हूं कहां? बाय 20 थॉप्स ए लिटिल टाउन. उसके बाद मैं 20 विलेजेस को पार करती हूं और एक टाउन, एक कस्बे को पार करती हूं. अच्छा, थॉर्प्स के मानिए डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट में हम, पुराने जमाने में हम विलेज को थॉर्प्स कहते हैं. यू कैन राइट, आप लिखो ए विलेज और हैमलेट. ए विलेज और हैमलेट. ए विलेज और हैमलेट इट्स कॉल्ड थॉप्स. बाय 20 थॉप्स ए लिटिल टाउन. मैं 20 विलेजेस के बीच में से गुजरती हूं, इनके नजदीक गुजरती हूं, बहती हूं. और एक कस्बे के नजदीक बहती हूं या के बीच में से गुजरती हूं. अच्छा, एंड half a hundred bridges. और एंड व्हाट डू यू मीन बाय half a hundred? half a hundred मीन्स 50. और 50 पुल्स के नीचे से मैं गुजरती हूं या इनके नजदीक से मैं गुजरती हूं. एंड half a hundred bridges. अच्छा, till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. उसके बाद till last, तो फाइनली मैं कहां पे पहुंचती हूं? फाइनली मैं फिलिप के फार्म तक पहुंचती हूं. तो वहां तक मैं पहुंचती हूं, वहां तक मैं बहती हूं. अब फिलिप इट्स द नेम ऑफ ए कैरेक्टर, इट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, ये किसी शख्स का नाम है. तो लास्टली मैं कहां पहुंचती हूं? फाइनली मैं फिलिप के फार्म तक पहुंचती हूं. उसके बाद टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर. उसके बाद मैं क्या करती हूं? उसके बाद मैं एक दरिया को ज्वाइन करती हूं. एम पछ हसबरालन एक दरिया टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर. लेकिन ब्रिमिंग के माने ये ऐसा दरिया होता है जो फुल होता है. ब्रिमिंग के माने फिल और बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग, यानी जो ओवरफ्लोइंग के करीब हो. बरी हुई हम कह सकते हैं, बरा हुआ या बरी हुई हम कह सकते हैं. ठीक है, यानी जिसका पानी बिल्कुल ऊपर किनारे तक हो. उसके बाद में ऐसे दरिया को ज्वाइन करती हूं. फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. लेकिन असल में ये क्या कहना चाहता है? फॉर मैन में कम एंड मैन में गो. ये इंसान जो है ये आते रहते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा से चलती रहती हूं. फॉर मैन में कम एंड मैन में गो. वी ऑल नो दैट ह्यूमंस दे कम टू दिस वर्ल्ड फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड आफ्टर
स्पेंडिंग सम टाइम इन दिस वर्ल्ड दे डाई, वो मर जाते हैं। कुछ वक्त गुजारने के बाद एक इंसान पहले बच्चा होता है, उसके बाद जवान, उसके बाद बूढ़ा, उसके बाद मर जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट, ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, while as nature is everlasting and permanent। गेटिंग, ह्यूमन लाइफ जो है असल में ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है। जो हमारी जिंदगी होती है ये शॉर्ट होती है, टेम्पररी होती है, आर्जी होती है। लेकिन जो नेचर होता है, ये जो ब्रूक होती है, उसके बाद भी चलती रहती है। नेचर, कुदरत हमेशा से रहेगी। अच्छा, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। देन I chatter over stony ways in little shops and troubles. I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. I chatter over stony ways. उसके बाद मैं क्या करती हूँ? I chatter over stony ways. उसके बाद मैं पथरीली रास्तों से गुजरती हूं। लेकिन जब मैं पथरीली रास्तों से गुजरती हूं, आई चैटर, चैटर के माने हैं बकबक करना, चहचहाना। बट हियर इट मीन्स टू पास विद अ नॉइज। कशिर पन गो यम सातन ये ब्रूक पथरीली रास्तों से जाती है, गुजरती है, बहती है, आवाज करन, ये वो आवाज सी निकालती है। दैट्स कॉल्ड चैटर, दैट्स कॉल्ड चैटर। वो जनजनाहट, वो उसकी जो मरमरिंग होती है, वो गुनगुनाहट पानी की जब ये पथरीली रास्तों से गुजरती है, वो गुनगुनाहट, वो जनजनाहट, वो क्या कहेंगे, सरसराहट पानी की, वो हमें सुनने को मिलती है। इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रबल्स, इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रबल्स, व्हाट डज इट मीन? इट इन लिटिल शॉप्स एंड, यानी शॉप रास्तों से मैं ज्यादा शोर मचाते हुए जाती हूं। यानी कभी कभार मुझे ऐसे रास्ते मिलते हैं जो बड़े शार्प होते हैं, जो बड़े शार्प होते हैं, और उसके बाद मैं इन रास्तों में से शोर मचाते हुए निकलती हूं। इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रबल्स, ट्रबल्स के माने हैं लाउड एंड लो साउंड्स ऑफ म्यूजिक। यानी जब मैं इन शॉप्स रास्तों से गुजरती हूं तो मैं शोर मचाते हुए गुजरती हूं। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, आई बबल इनटू एडिंग बेज, आई बबल इनटू एडिंग बेज। तो उसके बाद मैं क्या करती हूं? कभी कभार मैं क्या करती हूं? एडिंग बेज, एडिंग बेज कभी कभार मैं क्या बनाती हूं? एडिंग बेज के माने ए सर्कुलर मोमेंट ऑफ वाटर। आपने वो पानी को आपने देखा है, स्पाइरल मोमेंट उसकी पानी की देखिए। कुन साथ छु ना सु कुन साथ छु आब एक्सी जे जमा गसन और पत तथ छु जोद हु बनन बोन कुनी, और उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर वो बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले, पानी के बुलबुले, बबड़ छ तथ पेट कन खसन। एडिंग बेस के माने ए सर्कुलर मोमेंट ऑफ वाटर, स्पाइरल मोमेंट हम कह सकते हैं। सुने बन, उसके ऊपर वो जाग सा बन जाता है, वो बुलबुले से बन जाते हैं। तो आई बैबल ऑन द पेबल्स, और मैं क्या करती हूं? आई बैबल ऑन द पेबल्स। मैं जब पेबल्स के ऊपर से, जब मैं कंकरों के ऊपर से गुजरती हूं, बहती हूं, आई बैबल, बैबल के माने हैं पानी बहने की आवाज। बैबल इज द साउंड। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, हमने इसमें बहुत सारे साउंड्स को सुनना होगा। ब्रूक जो साउंड्स निकालती है उनको भी हमने इसमें पढ़ना होगा, सुनना होगा। अच्छा, बैबल के माने है पानी बहने की आवाज। आई बैबल ऑन द पेबल्स, जब मैं पेबल्स के ऊपर से गुजरती हूं तो मैं वो आवाज निकालती हूं। सो दिस इज